Let us welcome our Prime Minister with thunderous applause and unmatched enthusiasm. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರು ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. After the historic victories, the nation's confidence has become even more stronger. From development to global leadership, India is moving with pride and determination. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. इस देश की नेता कैसा हो, इस देश की नेता कैसा हो। पश्चिम बंगाल के शानदार जीत के बाद आज बेंगलुरु में पधारे हुए इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी को आप सबकी तरफ से, कर्नाटक की जनता की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं नरेंद्र मोदी जी को। ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರನ್ನ ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ, ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರೇ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ PC ಮೋಹನ್ ರವರೇ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ नरेंद्र मोदी जी ಅವರು कुछ पिछले सालों में जो पश्चिम बंगाल में एक गुंडा राज चल रहा था, जिस पश्चिम बंगाल में एक हिंदू विरोधी सरकार चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी के नायकत्व में पश्चिम बंगाल के हमारे कार्यकर्ता के परिश्रम से एक नया इतिहास बना है। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार पश्चिम बंगाल में आया है। इसलिए और एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की तरफ से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और इस समय में और एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का शानदार जीत हासिल हुआ है, आज खाली देश में नहीं, पूरे देश में सभी विपक्ष को पता चल चुका है, नरेंद्र मोदी जी के डिक्शनरी में नामुमकिन का सवाल ही नहीं है, असंभव का सवाल ही नहीं है। जहां नरेंद्र मोदी जी जाते हैं उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विजय तय हो चुका है, ये पूरा देश को पता चला है। बंधुಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನ
ಸಾಧಿಸುವ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आप लेके आया है, हम हमारे कर्नाटक के सभी कार्यकर्ता के तरफ से आपको भरोसा देता हूं, हम आपके मार्गदर्शन में अगले जब भी ಅದನ್ನ ಬಿಡು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ತಗೋ, ಚಿಲ್ ಮಾಡು. ಈಗ 7 ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ಯಾ? समाप्त करता हूं. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜಯದ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ बंगाल पश्चिम बंगाल शुरू, वेस्ट बंगाल इज द बिगिनिंग, पिक्चर अभी बाकी है. अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर को फेलिसिटेशन करना करके हम स्टेट प्रेसिडेंट को आमंत्रित करता हूं. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಲನ್ನ ಸಪ್ತಗಿರಿಗೌಡರು ತರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆ ಶಾಲನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಲು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ, ಮೈಸೂರು ಟರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಾಟಿ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರದೇ ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, 3 ಜನ ಸೇರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮೋದಿ ಮೋದಿ. In a few moments, the most awaited leader of the nation will address her. Thank you, sir. भारत माता की, भारत माता की. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. मैं कर्नाटका में बहुत बार आया हूं और कभी कभी समय अभाव से एयरपोर्ट पर ही इस प्रकार से छोटा कार्यक्रम करके आगे निकल जाता था. एयरपोर्ट पर भी कई बार कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम एयरपोर्ट पर यह पहली बार हुआ है. और मैं देख रहा हूं आज बेंगलुरु की धरती से केसरिया सूरज उगा है.
एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं जानता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता ही इतनी सुबह संगठित होकर किसी कार्यक्रम में पहुंच सकता है। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं देख रहा हूं आप सबकी आंखों में नजर आ रहा है, जिसको भी सुनने का अवसर आता है तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जीत भी आप ही की जीत है। साथियों, आज 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से दादी, हम सोमनाथ क्यों जा रहे हैं? तुझे सिखाने कि जीवन में लाख चुनौतियाँ आए पर आस्था ना डगमगाए। 1000 सालों में ढेरों आक्रमण हुए सोमनाथ पे, फिर भी हमारी आस्था पे आंच नहीं आई। फिर क्या हुआ दादी? फिर सरदार पटेल आए, दिव्य सोमनाथ मंदिर बनाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाया और आज हम सोमनाथ नव निर्माण का 75वां वर्ष मना रहे हैं और धूमधाम से। तो बोलो हर हर महादेव, जय सोमनाथ विरासत के 75 साल 8 से 11 मई 2026 इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने। जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं नाड़ प्रभु केम्पे गौड़ा जी को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे समय में बंगलुरु आया हूं जब देश में चुनाव परिणामों पर चर्चा चल रही है। पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए की सरकार बनना, असम में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनना, बंगाल में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा आशीर्वाद मिलना और अभी 2 सप्ताह पहले गुजरात के पंचायत और निकाय चुनावों में इतना भारी विजय हुआ कि गुजरात बीजेपी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साथियों, ये सब नया इतिहास रचने वाली घटनाएं हैं। साथियों, ये चुनाव परिणाम
भारत की राजनीतिक दशा दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। ये भारत के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, गरीबों और मिडिल क्लास हर वर्ग का मूड दर्शाता है। इन परिणामों का एक बहुत बड़ा मैसेज ये भी है कि अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है। जब बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, तब भी कर्नाटका ने बीजेपी को एक बड़ी शक्ति बनाया था। आज आंध्रा में एनडीए सरकार है। अगर लोकसभा सदस्यों के हिसाब से देखें तो कर्नाटका में बीजेपी नंबर 1 है। तेलंगाना में बीजेपी नंबर 2 है। पुडुचेरी में बीजेपी एनडीए की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। आपको याद होगा, सिर्फ 10 साल पहले, यानी पिछले एक चुनाव के पहले, बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले, 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं। और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। साथियों, हम 12 साल से केंद्र में हैं। देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, जिस पार्टी को 40 साल पहले 400 से अधिक सीटें मिली थी, वो पिछले 3 इलेक्शन में सब कुछ मिलाकर भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों का अहंकार इतना अधिक है कि अपनी पराजय के लिए भी
वो पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रक्रियाएं, कोर्ट, इनके प्रति भी घृणा मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। वो इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि गाली गलौज के सिवाय, बद्दी भाषा का प्रयोग करने के सिवाय अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। साथियों, बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है। तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है। इसलिए हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पड़ रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में
खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के साथ किया है। दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। ये संशोधन अगर पास हो जाता तो लोकसभा में कर्नाटका की सीटें कहीं अधिक हो जाती, बढ़ जाती। कर्नाटका से बहुत बड़ी संख्या में बहनें बेटियां एमएलए बनती, एमपी बनती, देश का भाग्य निर्णय करने में भागीदार बनती। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। देश की नारी, कर्नाटका की महिलाएं कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि से जुटा है। इस मंत्र को लेकर के चल पड़ा है और इस संकल्प की सिद्धि में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए ये जरूरी है कि कर्नाटका में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों बेहतर हो। मैं कर्नाटका के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं कि बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। साथियों, बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं।
वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगा बेबी फॉरेन चले? चलो, कोई अच्छी डील मिली क्या? मेरे पास एक बंदा है। मेरे पास एक बंदा है। मेरे पास 2 बंदे हैं। इसके पास एक बंदा है। मेरे पास भी एक बंदा है। आई ऑल्सो हैव वन बंदा ब्रो एक्स। वैसे बंदों की चेन तोड़ो, स्काई स्कैनर ही सॉलिड बंदोबस्त है। Search all your favorite travel sites in one place. Skyscanner, travel का ultimate hack. देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा। देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा। अपने अपने कर्तव्यों पर बल देना होगा। मुझे विश्वास है ऐसा करके हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। एक बार फिर यहां इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए और सुबह सुबह आने के लिए और ये केसरिया सूरज उगाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यहां कुछ बच्चे बढ़िया बढ़िया चित्र बना के ले आए हैं। जरा हमारे एसपीजी के लोग ये चित्र ले लें इन बच्चों से। अगर आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए इधर भी कोई चित्र लेकर के भाग रहा है, ले लो भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।